the Lord. Praise the Lord. And once again, it's good to be back with all of you. एक बार फिर से आप सबों के साथ में इस रीति से आनंद की बात है। Sing a few songs and worship God together. कुछ गीतों को हम गाने के द्वारा पहले प्रभु की स्तुति करेंगे And just look into the Word of God, what God has for us this day. और उसके बाद परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए आज के दिन कौन सा वचन दे रहा है। Shall we sing that Hindi song, Jai Jai Prabhu Yishu Ki? उस हिंदी के गीत को गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुलीब से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें न रहेगा दाग। खून की धारा बहती सुलीब से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें न रहेगा दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा 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 हालेलुया, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। Amen. आमीन। After some time, we won't need to sing this song, कुछ समय के बाद हमें इस गीत को गाने की आवश्यकता नहीं होगी, because after the coming of the Lord, क्योंकि यीशु मसीह के वापस आने के बाद we don't have to sing this verse again. हमें इस पद को गाना नहीं पड़ेगा कि वापस आता है। But in the meantime, परंतु इस दौरान till he tarries, जब तक प्रभु हमारा आने में देर करता है, occupy yourself in working for God. हम अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित रखें। Sowing in the morning, सुबह के समय बोते हैं sowing in the noontime. और
दोपहर के समय बोते हैं। Amen. आमेन। Bible says, don't withhold your hand from sowing. बाइबल कहती है अपने आप को बीज को बोने से अपने आप को मत रोको। Amen. आमेन। Sowing in the morning, sowing seeds of kindness. गीत कहता है सुबह के समय बोते दया के साथ में बोते हैं। Amen. आमेन। Sowing in the noontide दोपहर के समय में बोते हुए and in the dewy eve. और शाम के समय भी बीज को बोते हैं। Amen. Amen. Make it a little clear. Yeah. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilly breeze. By and by the harvest and the labor's ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. You know, we talk much about saying that we brought nothing into this world. We are not going to take anything out. आप जानते लोग कहते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। That's very true where material things are concerned. और ये बात बिल्कुल भी सत्य है जब भौतिक चीजों की बात है हम इसे नहीं ले जाएंगे। But there are something which we can bring to the Lord. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम प्रभु के पास लेकर जा सकते हैं। Bring in souls into the kingdom of God. आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you, oh evil, oh victory win? There's a wonderful power in the blood. I know there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय
यीशु के लहू में है। गाइए, बोलो जय जय। कुदरत अब भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय। कुदरत अब भी है यीशु के लहू में है। शैतान का सामना करो वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम ले, यीशु का नाम ले तो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। Take the name of Jesus, he will flee from you. Oh, take the name of Jesus, he will flee from you. Take the name of Jesus, he will flee from you. He is always a conquered foe. He is always a conquered foe. Oh, stand on the word, he will flee from you. Oh, stand on the word, he will flee from you. Stand on the word, he will flee from you. He is always a conquered foe. He is always a conquered foe. Hallelujah. हालेलुया। We serve a victorious Christ. हम एक बहुत ही जयवंत मसीह की आराधना करते हैं। His name is enough उसका नाम काफी है to make the powers of darkness flee. अंधकार की ताकत को भगाने के लिए काफी है। God has given him a name which is above every other name. परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है लिखा है। At the name of Jesus, every knee shall bow and tongue confess. यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिक जाएगा That Jesus Christ is Lord. और कहेगा Hallelujah. कि यीशु मसीह ही प्रभु है, To the glory of the Father. पिता की महिमा के लिए। So take the name of Jesus. इसलिए यीशु का नाम ले। Whatever your situation may be this morning. आपकी this परिस्थिति day, आज सुबह आज के दिन कुछ भी क्यों ना हो, Take the name of Jesus. यीशु का नाम ले। Take the name of Jesus, he will flee from you. Take the name of Jesus, he will flee from you. Take the name of Jesus, he will flee from you. He is always a conquered foe. He is always a conquered foe. यीशु का नाम ले तो भागेगा, यीशु का नाम ले तो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। Amen. Shall we worship God? आइए प्रभु की हम आराधना करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य
मेरे प्रभु यीशु। How you bless my life, Lord God. How you fill my life, Lord God. Simply want to say, I love you, Lord. Simply want to say, I love you. Simply want to say, I adore you, and I want to live your name, even higher. Simply want to say, I love you. Simply want to say, I adore you, and I want to live your name, even higher. Thank you, Father. Once again we pray, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, you'll break the bread of life unto us. तू जीवन की रोटी आज हमारे लिए तोड़। Holy Spirit, give us utterance to speak. पवित्र आत्मा तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे। Align our thoughts with your own thoughts. हमारे विचार और तेरे विचार एक हो जाएं प्रभु, We might deliver what you have for us this day. ताकि आज के दिन जो तू हमारे लिए रखा है हम उससे कह सके। Give us listening ears. हमें सुनने वाले कान दे प्रभु। May your word find root in our hearts, Lord. तेरा वचन हमारे हृदय में जगह पाने पाए पिताजी। Bless your people. अपने सुनने वाले लोग को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Shall we turn to 1 Corinthians 6 chapter? आइए हम देखेंगे बाइबल में पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, We will read from verse 9. और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ लेंगे। One Corinthians 6 chapter, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय reading from verse 9. 9 आयत से। Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 11th verse. 11 आयत। And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Amen. आमेन। This is a very familiar chapter. We have read it often. हम इस भाग को कई बार पढ़ चुके हैं, हम सब के लिए एक चिर परिचित भाग है ये। Many times when we have thought of who will enter the kingdom of God, we have come to this passage. और कई बार जब हम इस बात पे मनन करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, तो हम इस भाग में आते हैं। I like to clear certain things कुछ बातें यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, because many times what happens is
क्योंकि कई बार क्या होता है, people are born again and the others don't find much change in them. लोग नया जन्म पा लेते हैं और दूसरे लोग उनके जीवन में बहुत अंतर को नहीं देख पाते। So they begin to doubt then question their salvation. तो लोग ऐसे लोगों के उद्धार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। So I was reading these some portions of scripture, मैं पवित्र शास्त्र के ऐसे ही कुछ भागों को पढ़ रहा था and I found out that there are two kind of changes which take place. मैंने पाया दो किस्म का परिवर्तन है जो एक व्यक्ति के अंदर होता है, And we will see from the scripture over here. और अभी हम उसे यहाँ पवित्र शास्त्र में से देखेंगे वो दो परिवर्तन क्या So है। one of them is positional change. एक जो परिवर्तन है जिसको हम कहते हैं कि स्थान का परिवर्तन। We read here, यहाँ पर हम पाते हैं Paul is again questioning them, know ye not, पौलुस उनसे पूछता है, क्या तुम जानते नहीं the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? कि अधर्मी लोग, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। And then he said, be not deceived. और वो भी ये भी कहता है, धोखा ना खाओ। Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves in mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, ये लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे लिखा। But he strikes a very positive note in the 11th verse. लेकिन 11 आयत में बहुत ही एक सकारात्मक बात को कहता है He says, such were some of you. कि तुम में से कितने ऐसे ही थे। Hallelujah. हालेलुया। You know, he is saying, such were some of you, वो कह रहा तुम में से कितने ऐसे ही थे, but ye are now washed. परंतु तुम अब धुल चुके हो, Ye are sanctified, तुम पवित्र किए गए हो, but ye are justified और तुम धर्मी ठहराए गए हो in the name of the Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह के नाम से and by the Spirit of our God. और हमारे परमेश्वर के आत्मा से। Paul is reminding the Christian believers पौलुस उन दिनों के मसीह विश्वासियों को ये स्मरण दिला रहा है that before they came to know the Lord Jesus Christ as their personal Savior, कि इससे पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जान पाएं, many of them were living this kind of life. उनमें से बहुत से लोग ऐसा ही जीवन जी रहे थे। Fornicators, idolaters, adulterers, and so on and so forth. और कुछ वेश्यागामी, मूर्ति पूजक और लुच्चे और तमाम लोग, They were in bondage of sin वे लोग पाप के बंधन में थे, and Satan. शैतान के बंधन But it में। goes on to say, लेकिन वो आगे बोलता है, but after they came to know Christ as the Savior, लेकिन जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, their life was changed. उनका जिंदगी बदल गया। I like that word which says, मुझको ये वचन पसंद है जो बोलता है, such were some of you. तुम में से कितने ऐसे ही थे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It was a church in Corinth. ये कुरिन्थ नाम के जगह की कलीसिया थी। It's a place where a lot of sin abounded. एक ऐसा स्थान था, नगर था जहां बहुत अधिक पाप था। But now church has come in there. लेकिन अब उनके बीच में एक पवित्र कलीसिया आ गई थी। And he's saying, now you are washed. और अब पौलुस उनसे कहता, अब तुम धो दिए गए हो। Paul has confidence पौलुस को यदि इस बात का पूरा भरोसा है that these men have been genuinely saved. कि ये लोग वास्तविक तौर से उद्धार को पा लिए हैं, So 3 things he tells them. तो उनको 3 बात बोलता है। You are washed, तुम धोए गए, you are sanctified, पवित्र किए गए, you are justified तुम धर्मी ठहराए गए in the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम से। A definite change एक निश्चित परिवर्तन हुआ है in a person's life. एक व्यक्ति के जीवन में। There is a shift. यहाँ पर उस आदमी के जीवन में एक अंतर आ गया। In some people the change may be very evident. कुछ लोगों के जीवन में संभव है कि ये अंतर बहुत अलग से दिखने लग जाए, While in others it might take some time. और संभव है दूसरों लोगों के जीवन में वो कुछ देर से उन लोगों को नजर आ ध्यान में आए। Sometimes it confuses कई बार वो your unbelieving friend कई बार वो आपके
अविश्वासी दोस्तों को असमंजस में डाल देता है, your relations, आपके रिश्तेदारों को, your mother, your father, आपके माँ आपके पिता को, husband, your wife, आपके पति या पत्नी को, when they don't see much of your outward change. जब वो बहुत ज्यादा आपके बाहरी अंतर को नहीं देखते हैं, And yet, और तो भी that person has a definite assurance that he has been saved. उस व्यक्ति के पास एक बहुत ही निश्चिंत उसको धारणा है कि वो बदल चुका है। Amen. आमेन। So what I want you to see is this. आज मैं क्या चाहता हूं कि आप देखने पाएं, There is a shift when we accept Christ as our personal savior. एक व्यक्ति जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वहां पर उसका एक परिवर्तन होता है, एक जगह बदल जाती His है, position changes. उसका स्थान बदल जाता है, That we call justification. जिसको हम कहते हैं धर्मी ठहराया जाना। In this change, he doesn't do anything. और इस परिवर्तन में वो कुछ भी नहीं करता है। The only thing that he does is to believe on the Lord Jesus Christ. एक ही काम जो वो करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। And Bible says, believe on the Lord Jesus and you shall be saved. बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार को पाओगे। You must know the person who genuinely accepts Christ as the personal savior. हमें जानना चाहिए कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, He is shifted from darkness to light. वो अब अंधकार में से निकलकर अब ज्योति में आ गया है। There is a change in his position. उसके स्थान में अब एक अंतर आ गया From है। the kingdom of Satan शैतान के राज्य में वो था, to the kingdom of God. वहां से अब परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। From death मृत्यु से to life. जीवन में आ गया, From bondage बंधन से to freedom. आजादी में आ गया, From fear डर से to faith in God. परमेश्वर पे विश्वास में आ गया। Earlier, इसके पहले alien to the kingdom of God. परमेश्वर के राज के लिए बिल्कुल भी अलग था, Now, और अब he becomes a child of God. वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Ephesians 5th chapter 8 verse says, इफिसियों 5 और उसका 8 कहता है, he was sometimes darkness, तुम भी पहले कभी अंधकार थे, but now are ye lights in the Lord, walk as children of the light. परंतु तुम अब ज्योति की संतान हो, इसलिए ज्योति में चलो, वो बोलता है। Amen. आमेन। See what he's saying? वो क्या कह रहा है? Earlier, इसके पहले तो you were on the other side. तुम दूसरी तरफ थे, Now you have come this side. अब तुम परमेश्वर की तरफ आ गए हो। There is a spiritual realm which recognizes this change. आत्मिक परिक्षेत्र है एक जो आपके इस अंतर को जान लेता है। Demons recognize it. दुष्टात्माएं भी इस परिवर्तन को देख लेती हैं। Angels know about it. स्वर्गदूत भी आपके जीवन में हुए इस अंतर को देख लेती हैं। You yourself has an assurance आपको खुद इस बात का आश्वासन हो जाता है of your soul salvation. कि परमेश्वर ने आत्मा को उद्धार दिया। But outwardly, लेकिन बाहरी तौर से for much may not be seen in some people. कई लोगों में बाहरी रूप से बहुत अंतर हो सकता है, ना दिखाई दे। Others, there is a drastic change outside लेकिन also. कुछ ऐसे भी लोग हैं, उद्धार पाते ही साथ बहुत अंतर उनके जीवन में आ जाता है। How much we yield to God. हम कितना ज्यादा परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं, So much we receive. उतना ज्यादा हम अपने जीवन में अंतर को पाते हैं। In the book of Ephesians, इफिसियों की किताब में the second chapter, उसके दूसरा अध्याय में it is very clear there. वहां पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है, It says like this. ऐसा लिखा है, Ephesians second chapter, इफिसियों 2 अध्याय first verse onwards. पहली आयत से आगे, And you he hath quickened, who were dead in trespasses and sins, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the princes of the power of the air, the spirit that worketh in the children of disobedience. जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। So he's talking about the past of these people. वो इन लोगों के पिछले जीवन के बारे में बोल रहा है। You were governed by evil powers of darkness. वो कहता तुम अंधकार के जो हाकिम थे उनके अनुसार चला करते थे, But something happened. लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ। Fourth verse says, चौथी आयत बोलती है, But God who is rich in mercy परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है,
for his great love wherewith he loved us. उसने उस बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are ye saved. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। He has raised us up to sit with Christ in heavenly places. और उसने ये मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। Amen. आमेन। So our place changes. हमारा जगह पहले से अब बदल गया है। Okay? Amen. Your position has changed now. आपकी स्थान बदल गई Now है you are a child of God. और अब आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। But there is something else to do. लेकिन वहां पर कुछ और काम है करने को। But first let us see this. लेकिन पहले आइए हम इसे देखें। Colossians 1st chapter 13th verse says, कुलुस्सियों पहले अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, who has delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। NIV says, NIV के अनुवाद में लिखा है, he has rescued us from the dominion of darkness. उसने अंधकार के जो उसका अधिकार था उससे हमको छुड़ा लिया है Brought us into the kingdom of his son. और अपने बेटे के He loves. राज्य में हमको ले आया है, The son whom he loves. जिस पुत्र से वो प्रेम करता है। Now Amplified says, और एक और अनुवाद में लिखा है, the Father has delivered and drawn us to himself. पिता ने हमें छुटकारा देकर अपने पास हमें बुला लिया है, Out of the control and dominion of darkness, शैतान के नियंत्रण और अंधकार के नियंत्रण से निकालकर, and has transferred us into the kingdom of his son. और हमारे स्थान को बदल कर उसने अपने पुत्र के राज्य में हमें ले आया है। Amen. आमेन। So he shifted us, transferred us, उसने हमें बदल दिया है, हमारा स्थान परिवर्तित किया है translated us, और जगह बदल दिया, brought us out निकाल दिया उस अंधकार से into another place. एक और अलग जगह के अंदर। Our position has changed. हमारा स्थान बदल गया है। Amen. आमेन। And Paul says, पौलुस कहता है, therefore, इसलिए if any man be in Christ, जो कोई भी मनुष्य अब मसीह यीशु में है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। All things are passed away. पुरानी बातें देखो सब बीत गई हैं। No more condemnation. अब और कोई भी उस पर दंड की आज्ञा नहीं, It's all done away. ये अब वहां से निकल चुका है। No more enemies. अब कोई दुश्मन नहीं, We are in the family of God. परमेश्वर के राज्य में हम हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So our position changes. हमारा स्थान उद्धार के बाद बदल जाता है। As many as received him, बाइबल में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, to them gave he the power to become the sons of उसको God. उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। Now we have become his children. अब हम उसकी संतान बन गए हैं। All things passed away. पुरानी बातें देखो बीत गई हैं Behold, all things have become new. और सब कुछ नया हो गया है। And Peter writing says, और पत्रस अपनी पत्री में 1 लिखते Peter हुए, 2:9, we all know that. एक पत्रस 2:9 में वो कहता है, But ye are a chosen generation. परंतु तुम एक चुना हुआ राजवंश, Hallelujah. हालेलुया, A royal priesthood, और तुम एक राजपदधारी याजकों का समाज holy nation, और पवित्र राष्ट्र, a peculiar people, और तुम एक खास लोग हो, that you should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. ताकि तुम उसकी महिमा को प्रकट कर सको, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर महिमा में ज्योति में ले आया। Hallelujah. हालेलुया। So all these verses, और इसलिए सारी बाइबल की आयतें, Paul is putting it in one line. पौलुस एक ही आयत में एक ही बात में उसको बोल रहा है, Such were some of you. तुम में से कितने लोग पहले ऐसे ही थे। Hallelujah. हालेलुया। Such were some of you. तुम में से कितने लोग पहले ऐसे ही थे, You have been shifted from wherever you were to where you are now. और तुम पहले जहां थे वहां से अब तुम्हारा जगह बदल चुका है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। No, और अब that's all we received when we believed on Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हमें यही हमने पाया है, That we call justification. जिसको हम धर्मी ठहराए जाना भी कहते हैं। God pronounces us righteous. परमेश्वर हमको धर्मी बुलाता है। We are justified by Christ. मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। We are saved by grace. अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। Through faith, विश्वास से we change sides. हम
स्थान पक्ष बदल चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। We change sides हमने पक्ष को बदल लिया, by our choice. अपने चुनाव से हमने बदला है। We chose to accept Christ. हमने चयन किया है कि मसीह को ग्रहण करेंगे, That made all the difference. और ये निर्णय सब अंतर को ले आया। All that we had to do हमें जो कुछ भी करना है is to believe, वो परमेश्वर पर विश्वास करना है, and the rest, और बाकी Christ has done it all for us. यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए किया है। प्रियो, What a place of. क्या ही आनंद की बात है। We are standing in a place. हम एक ऐसे जगह में खड़े हैं, No more a child of fear. और अब डर की संतान नहीं, I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Such were some of you. ओ पौलुस कहता, तुम में से कितने पहले ऐसे ही थे, But now लेकिन अब you are washed. तुम अब धुल गए हो। Hallelujah. Hallelujah. But now लेकिन अब you are sanctified. तुम पवित्र कर दिए But गए, now पर अब you are justified. तुम धर्मी ठहरा दिए गए। Oh, hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। What a privilege it is क्या ही सौभाग्य ये है, to know Christ as our personal Savior. मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके जान लेना। But the second thing what I want to share is परंतु जो दूसरी बात मैं बांटना चाह रहा हूँ प्रियो, what the world wants to look at. जो दुनिया हमारी तरफ हम में देखना चाहती है, You are our epistles, Paul says, पौलुस कहता है जैसे कि तुम हमारी पत्रियां हो, read and known of all men. जो सब मनुष्य के द्वारा जानी और पढ़ी जाती हैं। Our life can be read by people. हमारे जीवन पढ़े जाते हैं लोगों के द्वारा। Here we have to do something. यहाँ पर हमें कुछ करना है, Personal change. व्यक्तिगत बदलाव, Sometimes we might call it sanctification. कभी कभी हम उसको पवित्रीकरण बोलते हैं। We have to avail of all the provision God has given to us to live a holy life. परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रावधान हमें दिया है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, वो सब हमें करना चाहिए। He will not force us. वो हमें कभी भी दबाव नहीं देगा, But He has given us, परंतु उसने हमको क्या दिया है? provided for us, हमारे लिए प्रावधान the किया, Word. वचन दिया है। He has provided us the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को हमको दिया है। He has provided us fellowship of God's people उसने प्रभु के लोगों की संगति हमको दिया है, so that we might change. ताकि हम लोग रोज बरोज बदल जाएं। Amen. Amen. For personal change, व्यक्तिगत बदलाव के लिए we have to do something. हमें कुछ करना है। Amen. आमेन। If we don't realize that we need any change, we will never change. यदि हम इस बात को एहसास यदि नहीं करेंगे कि हम बदल सकते हैं, तो हम कभी भी बदलेंगे नहीं। You can live with your temper throughout your life. आप जीवन भर अपने उस जल्द क्रोध होने वाले स्वभाव को लेकर जी सकते हैं। You can die a believer, आप एक विश्वासी के रूप में मरे हैं, संभव है, but you have not impacted anybody. लेकिन आपने किसी के जीवन में कोई भी आशीष नहीं बने। There has to be a realization that we need a change. हमें इस बात को एहसास करने का एक समय आना जरूरी है कि मुझको बदलना आवश्यक है। Be not conformed to this world. बाइबल कहती संसार के सदृश ना बनो, Be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा स्वभाव भी बदलता जाए। Your lifestyle changes. तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा चाल चलन बदलता Your जाए। walk changes. तुम्हारी चाल चलन बदल जाए। Your talk changes. तुम्हारे बात करने का तरीका बदल Your जाए। attitude changes. तुम्हारा आचरण बदल जाए। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है, is Paul writing to the Colossians, पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखकर बोलता है, 3rd chapter, और उसके 3रे अध्याय में 5th verse, he says, और 5वीं आयत में बोलता है, Mortify therefore the members which are upon the earth, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness. अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। You do something. तुम कुछ करो, Mortify yourself. अपने इन अंगों को मार डालो, Render them useless. इनको तुम बेकार निष्क्रिय कर दो, Don't feed them. उनको और खिलाओ मत, Starve them to death. उनको बल्कि भूखा रखो इन बुरे चीजों को, ताकि वो मर जाएं, So that the life of Christ will come forth in our ताकि मसीह की ज्योति हमारे अंदर आ जाए। 8th verse, 7th verse says, 7वीं आयत में लिखा है, in the which ye are also walked sometime when he lived in them. और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। Such were some of you. तुम में से पहले कई लोग ऐसे ही थे। Some of you walked
तुम in this manner. ऐसे ही बुरी चाल तुम चलते थे। Hallelujah. हालेलुया। Now he says, लेकिन अब वो कहता है, 8th verse. 8वीं आयत But में, now पर अब ye also put off all these. तुम भी इन सब को उतार दो, वो कहता छोड़ दो। He's talking to believers. विश्वासियों से बात कर रहा है जब ये लिख रहा है, He's talking to Christians. मसीह लोगों को लिख कर बोल रहा है। He says now that you're shifted, your position has changed. वो कहता अब जब तुम उद्धार पा गए हो, तुम्हारी जगह बदल गई है, Now you're walking in the light. अब तुम ज्योति में चल रहे हो, Don't do the deeds of darkness. तो अंधकार के काम मत करो, Do some work on your own self. परंतु अपने आप से कुछ ऐसे काम करो, Put off all these things. इन सब बुराइयों को अपने जीवन से उतार दो। Throw away that coat which is all contaminated with evil things. उस वस्त्र को उतार दो जो सारी मलिनता और गंदगी से भरी हुई है। But now, परंतु अब put off इन सब को छोड़ दो, all these. ये सब व्यवहार को, Anger, जैसा कि क्रोध, wrath, रोष, malice, बैर भाव, blasphemy, निंदा filthy करना, communication out of your mouth. मुंह से गालियां बकना, Lie not one to another, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, seeing you have put off the old man. क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। Hallelujah. हालेलुया। 10th verse it says, 10वीं आयत बोलता you है, have put on the new man, और तुमने एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, who is renewed in the knowledge after the image of him that created him. जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, To become like Christ. ताकि हम यीशु मसीह के समान बन That जाएं। should be our goal. हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We can get great name and great fame. हम बड़ा नाम और बड़ी प्रसिद्धि पा सकते हैं, But the greatest thing if any man could say after we have gone, परंतु आपके जाने के बाद यदि सबसे बड़ी चीज यदि कोई व्यक्ति बोल सके, that man walked like Jesus walked. तो ये है कि ये आदमी वैसे ही चलता था जैसा यीशु मसीह चलता था। John did no miracle. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा, उसने एक भी चमत्कार आश्चर्य कर्म नहीं किया, And all that he said about him was true. लेकिन जो कुछ भी यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बोला वो सब का सब सही था। He was a shining light. वो तो एक ऐसा मनुष्य था, चमकने वाली ज्योति। Jesus had to testify about him. यीशु मसीह खुद यूहन्ना के बारे में गवाही देता What है। went he out into the wilderness to see? तुम जंगल में क्या देखने के लिए निकले थे? उसने पूछा लोगों से। A man clothed एक मनुष्य को in soft raiment. जो अच्छे सुनहरे वस्त्र को पहना, उसको What देखने। went he out into the wilderness to see? फिर तुम क्या देखने के लिए जंगल में गए थे? A man क्या एक मनुष्य को? greater than a man, मैं कहता हूँ वो मनुष्यों से भी बढ़कर है, वो greater than all the prophets that are born. सारे भविष्यद्वक्ता जो पैदा हुए उससे भी बढ़कर है वो। What a testimony he left behind. क्या सुंदर गवाही यूहन्ना पीछे छोड़कर इस दुनिया में गया We है। can cast out demons in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आज हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। We can do great signs and miracles in his mighty name. हम यीशु मसीह के उसके सामर्थी नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। We cannot cast out this old flesh, लेकिन कई बार हम अपने ही our old nature. अपने ही पुराने स्वभाव और पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतार पाते। This has to be crucified. इस पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है प्रियो। Amen. आमेन। Jesus often said, यीशु मसीह ने अधिकतर हमेशा कहा है, unless you take up your cross जब to तक follow तुम- me, you can't be my disciple. जब तक तुम अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे नहीं चलोगे तो मेरे चेले नहीं ठहरोगे। Galatians 2:20 says, गलातियों 2 के 20 में वो कहता है, Paul is writing is saying, पौलुस इसको लिखकर बोल रहा है। he's giving his own testimony. पौलुस अपने ही खुद के जीवन की गवाही दे रहा He है। said, I am crucified with Christ. वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, Nevertheless, I live, अब मैं जीवित नहीं रहा but Christ liveth in me. पर मसीह मुझ में जीवित है। The life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, Who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। What a testimony. क्या गवाही है। I am crucified. पौलुस कहता मैं क्रूस पर Still I am alive. मसीह के साथ चढ़ा गया तो भी मैं आज जिंदा हूँ, But now the life which I live now, लेकिन अब जो मैं जो जीवित हूँ, he says, वो कहता है
I live in the flesh by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. वो कह रहा मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। Philippians 3:20-21 says, फिलिपियों 3 और उसका 21 कहता है, Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। That's the desire of God. परमेश्वर की यही इच्छा है। Jesus prayed his prayer and said, यीशु मसीह ने प्रार्थना करके कहा, Father, that they may be one as we are one. हे पिता, ताकि वो एक हो जाएं जैसे मैं और तू एक हैं। Amen. आमेन। I and them and you and me. ओ मैं उन तुझ में और तू मुझ में, उसने कहा। Amen. आमेन। That we all may be one in you. ताकि हम सब लोग उन चेलों सहित हम सब एक हो जाएं, उसने प्रार्थना की। John writing says, यूहन्ना लिखते हुए बोलता है बाइबल Behold में, what manner of love the Father had bestowed upon us, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है that we should be called the sons of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं। 1 John 3rd chapter, 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय में लिखा है, 1 यूहन्ना 3 2nd and the 3rd verse says, और उसकी दूसरी और तीसरी आयत कहती है, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him. हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Amen. आमेन। See the standard God has for us. देखिए परमेश्वर ने जो स्तर हमारे लिए रखा है, To be like Christ. मसीह यीशु के समान बन जाएं, That's old nature, the rude, crude, ताकि वो पुराना स्वभाव, वो टेढ़ा मेढ़ा जो स्वभाव है must die. वो ताकि मर जाए। Sometimes कभी कभी we are believers 40 years, 30 years. हम 40 साल से 30 साल से 40 साल से विश्वासी हैं, That nature has not changed लेकिन स्वभाव नहीं बदला है, because we have not worked on it. क्योंकि हमने उस स्वभाव के विषय में कुछ किया नहीं है। We always justified ourselves. हमने हर बार अपनी बातों को सही ठहराया We है thought we were right. और ये कहा है कि हम सही हैं। We fought, हमने लड़ाई भी की है, defended, अपने आप का बचाव किया है and said what we did was right. और हम ये कहे कि मैंने जो कहा या किया वो सही है। Just look into the word परमेश्वर के वचन में हम देखें and see और देखें where we stand. कि हम आज इस वचन के अनुसार कहाँ खड़े हैं। When he shall appear, जब वो प्रकट होगा we shall be like him. तब हम उसके समान हो जाएंगे। And every man who has this hope और हर एक मनुष्य जिसके अंदर ये आशा है purifies himself. वो अपने आप को पवित्र करता है। Amen. आमेन। One song says, एक गीत कहता है, Oh, to be like thee, ओ तेरे समान बनना, blessed Redeemer. धन्य छुटकारा देने वाले, This is my constant longing and prayer. ये मेरी निरंतर इच्छा है प्रार्थना में। Gladly I'll forfeit all earth's treasures. आनंद के साथ मैं पृथ्वी के सारे धन को त्याग दूंगा, Jesus, thy perfect likeness to bear. यीशु तेरे सिद्ध समानता को ग्रहण करने के लिए। And the chorus says, और इस गीत का कोरस कुछ ऐसा Oh, बोलता to है, be like thee. ओ तेरे ही समान बनना, Oh, to be like thee. ओ तेरे समान बनना, Blessed Redeemer, धन्य छुटकारा देने वाले, pure as thou art. जैसा कि तू पवित्र है। Come in your sweetness. अपनी तू सुंदरता में आ, Come in your fullness. अपनी भरपूरी में आ, Stamp your own image deep on my heart. अपनी स्वर समानता को मेरे हृदय में छाप कर दे।
Amen. आमेन। 2 Corinthians 3rd chapter 18th verse says, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय 18 आयत में लिखा है, But we all with an open face beholding as in a glass the glory of God. अब हम उघाड़े हुए चेहरे से परमेश्वर की महिमा को देखते हैं जैसे कि दर्पण से, Are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. और जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्माएं हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। What about our lives? हमारे जीवन के बारे में क्या है दोस्तों? Are we still there? क्या हम अभी भी वही हैं? The slightest thing you get worked up, क्या angry. अभी भी छोटी सी बात हमको क्रोध दिला देती है? Never ever prayed that God will remove it. और हमने शायद अभी तक प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मेरे इस क्रोध को दूर कर। Your position has changed. आपका स्थान तो बदल गया है, You are a child of God, आप परमेश्वर की संतान तो बन चुके हैं, but your personality has not changed. लेकिन आपका व्यक्तित्व क्या बदला है? Amen. आमेन। I must check myself. मुझको इस बात में खुद अपनी ही जांच करनी की For आवश्यकता है। personal change, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए you have to cooperate. आपको प्रार्थना करनी, आपको सही होना है। I have to do that. मुझको अपने जीवन को सुधारना है। Do we have a desire? What is our desire? क्या हमारे अंदर ऐसी इच्छा है? क्या हम चाहते हैं? One song says, एक गीत है और वो कहता है, Be like Jesus. यीशु के समान बन जाऊं। This is my song. मेरा गाना, मेरा गीत यही है। In the home चाहे घर में हूँ, and in the throng, चाहे मैं भीड़ में हूँ, be like Jesus यीशु के समान बनूं, all day long. दिन भर वैसा ही रहूं। All I long to be और like मैं यही Jesus. चाहता हूँ कि मैं यीशु के समान बन जाऊं। When He shall come, और जब वो आएगा, we should be like Him. उस दिन हम अपने प्रभु के समान पाए जाएं। Every man who has this hope हर एक मनुष्य जिसके अंदर ये आशा है, works on himself. वो अपने अंदर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, Change my heart, O God. प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, Change my attitudes. मेरे आचरण को बदल दे, Change my life. मेरा जीवन व्यवहार बदल दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें प्रियो। Bless your name, Father. I pray to Thee this day. प्रभु आज के दिन हमारी तुझसे यही प्रार्थना है, Do something new in my life. मेरे जीवन में तू कुछ नया कर। We hand over all the keys of all the kingdoms of our heart. हम अपने हृदय के हर एक कमरों की चाबी को तेरे हाथ में सौंपते पिताजी। That secret avenues वो ऐसे गुप्त क्षेत्र हैं जो which we have not surrendered to you as yet. जो अब तक तुझको हमने समर्पण नहीं किया है, We give it all to you this day. लेकिन आज के इस दिन हम ये सब तुझको दे देते हैं And we say, और ये कहते हैं, I surrender all. सब मैं समर्पण करता हूँ All to Thee, तुझको ही प्रभु, my blessed Savior. मेरे धन्य उद्धार करता। I surrender all. मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। Jesus, प्रभु यीशु, be the Lord of all. तू मेरे जीवन के हर बात का प्रभु बन जा। All the kingdoms of my heart मेरे हृदय में जितने राज्य हैं सबके ऊपर be glorified. तू महिमा को पा। So transform us. ऐसे बदल दे प्रभु जीवन को, Those who look at us may say, ताकि जो बाहरी लोग भी हमारे जीवन को देखें वो कह सके, These are Christians. ये मसीही लोग हैं They show forth the life of Christ. और मसीह की ज्योति को प्रकट करते हैं। Bless your people, O God. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। Amen.